Hello everyone, welcome to the channel. In my previous video, I talked about our continuation part of our trachea, mainly the bronchus, the primary bronchi, secondary bronchi, then bronchioles in details. If you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today, I will talk about our last part of our bronchioles, the 23rd order of bronchioles, where you will get the alveolus. Alveolus is a single one, but there are millions and millions of alveolus. We call it together alveoli as a plural. Now you can say it alveoli or alveoli, whatever you want, it's up to your wish. Now as you can see in this photo, this is grapes. Look, there is one duct and there are multiple grapes. Okay, just like you can see this photo. In this photo you will get one duct and multiple alveolus or alveoli. Okay, now this structure looks like similar to ग्रेप्स. मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर में जो आप फोटो में एक डक्ट देख रहे हो, अंगूर तो सुना होगा आपने ना. ग्रेप को आप हिंदी में क्या बोलते हो? मैं अंगूर बोलते हो बंगाली में. एनीवे, तो ये अंगूर जो है, इसके ऊपर एक डंडा है और बहुत सारे अंगूर ऐसे थोका जैसा बना हुआ है. ठीक है, इसको हम बाजार में देखते हैं, फल बाजार में, तो हम खरीद के खाते, आप लोग भी खाते होंगे. एनीवे, तो ठीक ऐसे ही दिखने वाला हमारे जो एल्व्यूलस होते हैं फेफड़े के अंदर. तो 23 नंबर या फिर 23rd ऑर्डर, एकदम लास्ट वाला जो ब्रोंक्यूल है, उस ब्रोंक्यूल से मतलब बहुत सारे ब्रोंक्यूल है, तो एक मान लो इधर में एक 23rd नंबर 23 नंबर एक ब्रोंक्यूल है और इसी से एक डक्ट निकलता है, जो एक इसको हम डक्ट कहते हैं. ठीक है, फोटो में जो देख रहे हो, और इसी डक्ट को घिरे हुए हैं बहुत सारे एल्व्यूलाई. ठीक है, दिस alveolus is very microscopic structure. You need to see under the microscope. Under the microscope, in single slide, you will see the 100 or 150 numbers of alveoli. But I am talking about the entire lungs, our adult version of lungs. These are very big, as you can see in this photo, and this lung contains on an average 480 millions of alveoli. Okay, अब एक चीज अब ये फोटो में देख लो कि ये जो एल्व्यूलर डक्ट है, डक्ट आपको 2-3 थैली में होता है. ठीक है, एयर सैक या एयर बैग जैसा. अब हर एक बैग में या फिर हर एक थैली के आसपास में बहुत सारे एल्व्यूलाई जुड़ा हुआ है. ठीक है, व्हाट आई मीन इज, इन दिस फोटो यू कैन सी दैट एल्व्यूलर डक्ट opens into 2 to 3 alveolar bags. Okay, and each bag contains of lots and lots of alveolus. Extra knowledge point, what is this? I said that each and every 23rd order of bronchiole, it gives one alveolar duct, and this alveolar duct contains of multiple air sac or air sacules or air bags or alveolar sacs. Now each sac contains lots and lots of alveolus. Now this entire structure we call it acinus or acinus, or you can say whatever you want. तो acinus या acinus, इसके अंदर में क्या होता है? ब्रोंक्यूल रहता है, एल्व्यूलर डक्ट रहता है, एल्व्यूलर सैक रहता है और बहुत सारे एल्व्यूलस या फिर एल्व्यूलाई रहता है. 4 चीज को मिला के हम कहते हैं acinus. ठीक है, याद रहेगा. अब हर एक एल्व्यूलस जो होता है, अलग अलग एल्व्यूलस का साइज कितना होता है? 200 से लेके 300 माइक्रोमीटर. ठीक है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, अगर ये सब चीज आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे एकदम पहला वाला वीडियो जो है, एकदम शुरू से वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा. व्हाट आई मीन इज द साइज ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल एल्व्यूलस इज रेंजेस फ्रॉम 200 to 300 micrometer. Okay, now if you don't understand what is the meaning of micrometer, nanometer, picometer, so please watch my first video in this channel. Okay, as you can see in this photo, there are lots of alveolus in one air sacule or alveolar sac. Now each alveolus are separated from each other by a thin wall. We call it alveolar septa. Okay, now this septum or this septa made by elastin fibers and collagen fibers. Okay, due to the presence of elastin and collagen fibers, this alveolar sac maintains its shape. It doesn't collapse.
अब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जानने के लिए, वो है कि ये जो फोटो में आपको दिख रहा है एल्व्यूलस, इस एल्व्यूलस का जो वॉल है इसमें बहुत सारे छोटे 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 छेद रहते हैं, ठीक है। हर एक छेद को हम कहते हैं पोर्स ऑफ कॉर्न। देख लो नीचे में स्पेलिंग लिख कर रखा हूं, ठीक है। व्हाट आई मीन इज द वॉल ऑफ ईच एल्व्यूलस कंटेंस ऑफ मल्टीपल पोर्स नोन एज पोर्स ऑफ कॉर्न। ओके, I hope you remember this point, very important for your entrance exam. Okay. अब हम बात करते हैं एल्व्यूलस के अंदर में क्या होता है। अंदर में देखने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत बड़ा वाला मशीन है। इसके बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम एल्व्यूलस के अंदर में जब देखते हैं तो आपको मिलता है हर एक एल्व्यूलस के अंदर दो तरह के कोशिका होते हैं, एक टाइप 1 रेस्पिरेटरी सेल, दूसरा टाइप 2 रेस्पिरेटरी सेल। अब टाइप 1 जो है रेस्पिरेटरी सेल जो है इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं न्यूमोसाइट। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट टाइप 1 न्यूमोसाइट। इट्स एक्चुअली थीन एंड फ्लैट एंड रिलेटिवली लार्जर देन टाइप 2 न्यूमोसाइट। ये टाइप 1 न्यूमोसाइट मेनली हमारा जो ये हवा में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैस है, इसका एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज दिस टाइप 1 न्यूमोसाइट हेल्प्स इन आवर एयर एक्सचेंज, आई मीन gas exchange, mainly the oxygen and carbon dioxide and other gases. Okay, I'll talk about this mechanism in physiology chapter, not here. Okay, this type 1 pneumocyte cannot regenerate, I mean cell division does not happen in this type 1 cell. So once this type 1 cell is dead, it means it's completely dead. मेरा मतलब है हमारा ब्रेन में जो जितने सारे न्यूरॉन है वो सेल डिविजन में नहीं जाते, हमारे हार्ट में जितने सारे कार्डियोसाइट है वो सेल डिविजन में नहीं जाते। ठीक ऐसे ही हमारे फेफड़े के अंदर जो एल्व्यूलस है इसमें जो टाइप 1 न्यूमोसाइट है वो भी सेल डिविजन में नहीं जाते हैं। इसका मतलब अगर किसी कारण में टाइप 1 न्यूमोसाइट मर जाता है, इसका मतलब मर जाता है, वो कभी दोबारा उस जगह में दूसरा टाइप 1 न्यूमोसाइट नहीं आएगा। मान लो कुछ बीमारी है, या मान लो कुछ घर में आग लगी है, या कोई भी टॉक्सिक गैस होता है, या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, केरोसिन, पेट्रोल, कोरोसिव एजेंट्स, बात करेंगे फ्यूचर में डिटेल्स में फॉरेंसिक सेक्टर में। किसी भी कारण में अगर कोई चीज हमारे फेफड़े के अंदर एल्व्यूलस तक चले जाते हैं और उस खतरनाक चीज के लिए एक एल्व्यूलस के अंदर जितने सारे टाइप 1 न्यूमोसाइट है वो सब, मान लो एक एल्व्यूलस है, इसके अंदर 200 टाइप 1 न्यूमोसाइट है, ठीक है। अब कुछ खतरनाक चीज इसके कांटेक्ट में आ गया है और 200 के 200 टाइप 1 न्यूमोसाइट खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, मर गया। इसका मतलब ये जो एल्व्यूलस है ये बेकार हो गया, इसमें हवा या फिर गैस एक्सचेंज नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 2 न्यूमोसाइट जो आप ये फोटो में देख रहे हो ये बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, बक्सा जैसा, क्यूबोइडल शेप, और बहुत ही छोटा छोटा साइज में होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारे मतलब एल्व्यूलस जो है, एल्व्यूलस का जो सेल मेम्ब्रेन है, पर्दा, इस सेल मेम्ब्रेन या फिर पर्दे के कांटेक्ट में आते ही एक तरह का तेल जैसा लिक्विड सिक्रेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो ये जो सर्फेक्टेंट है ये एक्चुअली आपका फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, मतलब तेल जैसा। कैसे होता है, क्योंकि ये जो टाइप 2 सेल है, टाइप 2 न्यूमोसाइट, इसके अंदर में एक लेमेलर बॉडी या फिर लेमेलर ग्रेन्यूल जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, फोटो में जो देख रहे हो। तो जब भी ये टाइप 2 सेल एल्व्यूलस का पर्दा जो है, सेल मेम्ब्रेन, इसके कांटेक्ट में आते हैं, साथ ही साथ ये फॉस्फोलिपिड सिक्रेशन करता है, ठीक है। अब ये सर्फेक्टेंट, ये मतलब फॉस्फोलिपिड लेमेलर बॉडीज में कैसे बनता है, फिर आपका टाइप 2 न्यूमोसाइट से कैसे निकलता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, वो सब कुछ हम फिजियोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना जान के रखो कि टाइप 2 सेल ये हमारे सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन करता है जो कोलैप्स, मतलब एल्व्यूलस को कोलैप्स या फिर बिखरने से रोकता है। दूसरी चीज, ये मतलब टाइप 2 न्यूमोसाइट ये रिजेनरेशन होता है, मतलब सेल डिविजन होता है। किसी भी कारण अगर एक एल्व्यूलस में, मतलब
50, 60 या 100, 150 सल्फेट टाइप 2 न्यूमोसाइट मर जाता है, फिर भी कोई बात नहीं, आस पड़ोस में जितने सारे टाइप 2 सेल है उससे फिर सेल डिविजन होके रिपेयर हो जाता है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज दिस टाइप 2 न्यूमोसाइट हैज द एबिलिटी टू रीजेनरेट। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सेल डिविजन कर पाते हैं, ठीक है, मतलब रीजेनरेशन हो पाता है, बस इतना ही। आप समझ गए, काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एल्व्यूलस या एल्व्यूलाई के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर समझे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।